Hello students, welcome to my channel Economics. I hope you all are doing well. On request of few students, I am starting a new playlist that is of national income. As you all know that national income has a lot of weightage when we talk about class plus 2 exams. So I will be making approximately 9 to 10 videos for this chapter so that you are able to understand each and every concept and moreover you can even retain it. We will be discussing in this video concept of circular flow, money flow and real flow. So without wasting any more time, let's get started. Before discussing circular flow, I will be discussing with you some basic terms. I know that these basic terms you may be familiar with it, but it is my duty to explain you. Just it will take few seconds to explain all these terms. The first term is production. Production, it is the process of converting inputs into आउटपुट्स. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं प्रोडक्शन. जब इनपुट्स आउटपुट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं प्रोडक्शन. फॉर एग्जांपल इनपुट्स हम ले लेते हैं रॉ मटेरियल और आउटपुट्स हम लेते हैं फाइनल गुड्स. ठीक है, रॉ मटेरियल और ये हम ले लेते हैं फाइनल गुड्स. ठीक है, जब रॉ मटेरियल की हेल्प से फाइनल गुड्स बन जाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं प्रोडक्शन का प्रोसेस. ठीक है, प्रोडक्शन के प्रोसेस को हम इस तरीके से मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. दैट इज आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट. Next we have consumption. It is the process of intaking goods and services, very important, goods as well as services for direct satisfaction of individual. Consumption कौन सा process है? ये process of intaking goods and services. Goods and services जब हम intake करते हैं for satisfaction of individual needs, उस process को क्या कहते हैं? Consumption. Most of the students say that only the consumption of, I mean to say only the intake of goods are considered as consumption, but you are wrong. कंजम्पशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग गुड्स एज वेल एज सर्विसेज. जब हम गुड्स और सर्विसेज दोनों इनटेक करते हैं फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ इंडिविजुअल नीड्स, उसको कहते हैं कंजम्पशन. फॉर एग्जांपल इन गुड्स वी हैव मिल्क, ग्रेन्स एक्सेट्रा, एंड इन सर्विसेज वी हैव सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय डॉक्टर, टीचर, लॉयर. इनकी जो सर्विसेज हम लेते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को भी हम क्या कहते हैं कंजम्पशन का प्रोसेस कहते हैं. Next we have capital formation. It refers to addition in existing stock of capital. Just a second. It refers to addition in existing stock of capital, very important, in an economy during an accounting year. ठीक है, जब existing stock of capital में एडिशन होता है मतलब बढ़ोतरी होती है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन. फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, जब ये कंस्ट्रक्ट होते हैं रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स एक्सेट्रा, तो उसको क्या कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन का प्रोसेस. नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. See students, there are four sectors of an economy. One is household, then we have producer sector, then we have government sector, and at last we have rest of the world sector. Most of the students say that there are only two sectors of the economy, that is household sector and producer sector, but you are wrong. We have four sectors of an economy: household, producer, government and rest of world sector. ठीक है, तो पहला आता है हाउस सेक्टर. हाउस सेक्टर वो सेक्टर होता है जो कि ओनर होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का. ठीक है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनर होता है उसको क्या कहते हैं हाउस होल्ड सेक्टर. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. प्रोड्यूसर सेक्टर. प्रोड्यूसर सेक्टर इज अ सेक्टर जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है. ठीक है, प्रोड्यूसर सेक्टर वो सेक्टर होता है जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है, उसको क्या कहते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर. Next we have government sector. As you all know, government sector is concerned with ensuring welfare and development in the economy. उस sector को क्या कहते हैं government sector. जो sector welfare and development of economy के ऊपर उनका main focus है तो उस sector को क्या कहते हैं government sector. रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर में हम इंक्लूड करते हैं इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जब हम इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं उसको क्या कहते हैं रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर. फॉर एग्जाम्पल export of television, it will come under rest of world sector. Okay,
Now, services being rendered by an Indian teacher to the students abroad. ठीक है, to the students abroad, वो भी किस में आएगा, rest of world sector, because we are considering both goods as well as services. Okay, खाली goods को हमने consider नहीं करना, goods और services को दोनों को consider करके चलना. Now I will be discussing with you an important concept, that is circular flow. It refers to the flow of goods and services between different sectors of an economy in an accounting year. ठीक है, अब हमने क्या बोला, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, हम ये पढ़ रहे हैं, मतलब क्या, फ्लो से लेना है. इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. एज यू नो कि हमें गुड्स एंड सर्विसेज को दोनों कंसीडर करना है. ठीक है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी. डिफरेंट सेक्टर्स कौन से आते हैं, 4 सेक्टर्स, दैट इज हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर. डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर. अकाउंटिंग एक साल के बीच में, ठीक है, एक साल के बीच में, अकाउंटिंग ईयर मतलब एक साल के बीच में. अब सर्कुलर फ्लो में 3 फेजेस आते हैं. ठीक है, हम 1 बाय 1 तीनों फेज को डिस्कस करेंगे. पहला आता है फेज ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा है इनकम फेज एंड तीसरा है एक्सपेंडिचर फेज. ठीक है, अब पहला आता है प्रोडक्शन फेज. इसको क्या कहते हैं, जनरेशन ऑफ इनकम. नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्रोडक्शन मतलब कुछ प्रोड्यूस होगा इस फेज में. ठीक है, क्या होगा, कुछ प्रोडक्शन होगी, कुछ प्रोड्यूस होगा. तो इस फेज में क्या होता है, जब हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. जब हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड्स, तो उस फेज को क्या कहते हैं, प्रोडक्शन फेज. ठीक है, उस फेज को क्या कहते हैं, प्रोडक्शन फेज. क्योंकि यू नो कि प्रोड्यूसर्स ने अगर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है तो उसको कुछ ना कुछ लैंड चाहिए, कोई लेबर भी चाहिए. ठीक है, लेबर के बिना वो प्रोडक्शन नहीं कर सकता. कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, और एंटरप्रेन्योर मतलब एक बंदा, एक ओनर भी चाहिए जो सब कुछ हैंडल करे. ठीक है, तो जब हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है तो उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्शन फेज. नेक्स्ट आता है इनकम फेज. इनकम, नाम से ही पता चल रहा है कुछ इनकम आ रही है. ठीक है, समथिंग रिलेटेड टू इनकम, मनी. तो अब इस फेज में क्या होता है, जब प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट्स प्रोवाइड करता है. ठीक है, फैक्टर पेमेंट्स प्रोवाइड करता है तो उस सेक्टर को क्या कहते हैं, इनकम फेज. अब फैक्टर पेमेंट्स में क्या आता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. ठीक है, ये वैसे आपको पता है पर तब भी मैं आपको बता देती हूँ. ठीक है, जब प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट्स प्रोवाइड करता है तो उस फेज को क्या कहते हैं, इनकम फेज. क्योंकि देखो प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को पैसा दे दिया. ठीक है, पैसे का लेन देन हुआ तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं, इनकम फेज. नेक्स्ट वी हैव एक्सपेंडिचर फेज. एक्सपेंडिचर फेज नाम से ही पता चल रहा है, समथिंग रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जैसे हमें पता है अभी कि हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट्स मिली है प्रोड्यूसर सेक्टर से, तो हाउस होल्ड सेक्टर के पास क्या आ गया, पैसा आ गया. ठीक है, अब उसने वो पैसे को मतलब उस मनी को कहीं ना कहीं स्पेंड करना, उसने एक्सपेंडिचर करना. तो जब हाउस होल्ड सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर सेक्टर से बाय करता है, ठीक है, बाय डूइंग सम एक्सपेंडिचर, तो उस फेज को क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर फेज. उस फेज को क्या कहेंगे, एक्सपेंडिचर फेज. इन शॉर्ट में दोबारा से बता देती हूँ. देखो प्रोडक्शन फेज में क्या होता है, कुछ ना कुछ हमने प्रोड्यूस करना है. ठीक है, जब हमने कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करना है तो प्रोडक्शन के लिए हमें कुछ ना कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए. तो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या करेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, इस फेज को क्या कहते हैं, जनरेशन ऑफ इनकम फेज भी कहते हैं. ठीक है, जनरेशन ऑफ इनकम फेज भी कहते हैं. नेक्स्ट है इनकम फेज, समथिंग रिलेटेड टू इनकम मतलब पैसा किसी के हाथ में आ रहा होगा. तो जो जब हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए तो उसको इन रिटर्न भी तो हाउस होल्ड सेक्टर को कुछ ना कुछ प्रोड्यूसर सेक्टर को देना पड़ेगा. ठीक है, तो जब प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर्स को फैक्टर पेमेंट दी है तो उस फेज को क्या कहते हैं, इनकम
फेज। इस फेज में क्या होगा, इनकम प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर में जा रही है, तो इस फेज को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फेज। नेक्स्ट वी हैव एक्सपेंडिचर फेज, समथिंग रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर। अब क्या हुआ था इनकम फेज तक कि हाउस होल्ड सेक्टर के पास सारा पैसा आ गया था, तो अब हाउस होल्ड सेक्टर ने उस पैसे की हेल्प से एक्सपेंडिचर करना है, तो उसने क्या किया, उसने गुड्स एंड सर्विसेज को उसने गुड्स एंड सर्विसेज को बाय किया फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, ठीक है, बाय डूइंग सम एक्सपेंडिचर। सो दिस फेज इज नोन एज डिस्पोजिशन ऑफ इनकम फेज, डिस्पोजिशन ऑफ इनकम फेज। नाउ इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज दैट हर एक फेज, मतलब प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज और एक्सपेंडिचर फेज में इक्वालिटी होनी चाहिए, मतलब ट्रिपल आइडेंटिटी का लॉ जो है वो मेंटेन होना चाहिए ये तीनों फेजेस में। दैट इज वी कैन से प्रोडक्शन इज इक्वल टू इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ठीक है। इस नोटेशन को क्या कहते हैं, ट्रिपल आइडेंटिटी, ठीक है। ट्रिपल आइडेंटिटी जो है इकोनॉमी में मेंटेन होनी चाहिए, मतलब जितनी लेवल की प्रोडक्शन हो रही है उतने लेवल का इनकम जनरेट होना चाहिए, उतने लेवल का एक्सपेंडिचर होना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एज यू नो कि एक्सपेंडिचर फेज में ये होता था कि हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर से गुड्स एंड सर्विसेज बाय करता है, ठीक है। तो अब सारा पैसा हाउस होल्ड सेक्टर से कहाँ पे पहुंच गया, प्रोड्यूसर सेक्टर पे पहुंच गया। जब प्रोड्यूसर्स के हाथ में पैसा आ गया तो वो दोबारा से क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, तो दोबारा से मतलब एक्सपेंडिचर फेज के बाद दोबारा से प्रोडक्शन फेज शुरू हो जाएगा, दोबारा से प्रोडक्शन फेज शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही सर्कल घूमता रहेगा, इसीलिए हम बोलते हैं इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब बार बार वही सर्कल घूम ही जाएगा, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज in different sectors of an economy in an accounting year. I hope आपको circular flow of income का concept अच्छी तरीके से समझ लग गया होगा। The thing that you need to remember is that triple identity का law जो है वो maintain होना चाहिए circular flow of income. Now we have real flow. Real flow को हम physical flow के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, real flow को हम physical flow के नाम से भी जानते हैं। सो नाम से पता चल रहा है रियल फ्लो, ठीक है, रियल फ्लो मतलब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। जब खाली गुड्स एंड सर्विसेज डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में फ्लो करेंगी तो उस फ्लो को क्या कहते हैं, रियल फ्लो, ठीक है। इसको फिजिकल फ्लो भी कह सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हो इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फिजिकल आउटपुट बिटवीन डिफरेंट सेक्टर। जो आउटपुट हमें मिली है, ठीक है, आउटपुट में बी इन फॉर्म ऑफ गुड्स और इट में बी इन फॉर्म ऑफ सर्विसेज, ठीक है। जो आउटपुट हमें मिली है तो उसके फिजिकल फ्लो को डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में क्या कहते हैं, रियल फ्लो, ठीक है। आई होप आपको डेफिनेशन समझ लग गई होगी। अब हम जैसे टू सेक्टर्स, जैसे हमने ऊपर बताया मैंने आपको कि 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, दोबारा रिकॉल कर देती हूँ कौन कौन से, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर। पर रियल फ्लो को कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं 2 सेक्टर्स कंसिडर कर रही हूँ, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर, 2 सेक्टर्स में ले रही हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज ही खाली फ्लो करती है, ठीक है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जो हाउस होल्ड सेक्टर है ना वो प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देगा, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देगा ताकि प्रोड्यूसर जो है वो गुड्स को प्रोड्यूस कर सके। हाउस होल्ड सेक्टर जब प्रोड्यूसर सेक्टर्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता है, ठीक है, तो प्रोड्यूसर सेक्टर्स के बाद फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर पहुंच गया, जिसकी हेल्प से वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकता है। तो अब इन रिटर्न जब हाउस होल्ड सेक्टर ने कुछ प्रोड्यूसर सेक्टर को दिया तो ऑब्वियसली प्रोड्यूसर सेक्टर को भी हाउस होल्ड सेक्टर को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो वो क्या देगा, वो गुड्स एंड सर्विसेज देगा, ठीक है, वो क्या देगा, गुड्स एंड सर्विसेज देगा। इसमें हमने मनी की कहीं भी बात नहीं की, पैसे की बात नहीं हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। रियल फ्लो में खाली गुड्स एंड सर्विसेज के लेन देन के हम ट्रांजेक्शन्स देखते हैं, ठीक है। जब हमने गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर मिल्क, फूड ग्रेन्स, लाइक वेजिटेबल आइटम्स, ऐसे की आइटम्स, ठीक है, गुड्स हो गई। सर्विसेज मतलब टीचर की सर्विसेज, लॉयर की सर्विसेज, अकाउंटेंट की सर्विसेज, ये सब कुछ हो गया, ठीक है। जब इनके बीच में लेन देन होता है ना तो उसको कहते हैं रियल फ्लो, इसमें मनी कहीं नहीं आएगी। मतलब हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देना है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देना है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर्स को गुड्स एंड सर्विसेज देनी है इन रिटर्न, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैंने आपसे कुछ लिया है तो आपको मेरे को कुछ ना कुछ वापस देना पड़ेगा। ये है रियल फ्लो। नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग मनी फ्लो।
मनी फ्लो को हम मोनेटरी फ्लो भी कहते हैं। मनी फ्लो को क्या कहते हैं? मोनेटरी फ्लो। ओके, सो इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी, मनी के फ्लो को बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, उसको क्या कहते हैं? मनी फ्लो। मतलब नाम से ही पता चल रहा है, मनी, समथिंग रिलेटेड टू पैसा, मनी। ठीक है, इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ, फ्लो किसका? मनी, पैसे का, बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, उसको क्या कहते हैं? मनी फ्लो या मोनेटरी फ्लो। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट रेफर्स टू द मोनेटरी ट्रांजेक्शंस बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स। डिफरेंट सेक्टर्स में जो मोनेटरी ट्रांजेक्शन मतलब मनी के रिलेटेड ट्रांजेक्शंस होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मनी फ्लो या मोनेटरी फ्लो। रियल फ्लो में हमने क्या पढ़ा था? फ्लो ऑफ, just a second students, just a second, flow of goods and services। रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हम कंसीडर करते हैं, और मनी फ्लो में हम मनी को कंसीडर करते हैं। ठीक है, मनी को कंसीडर करते हैं। ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस है। ठीक है, बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। इन एन अकाउंटिंग ईयर भी आपने लिखना तो आप मेंशन कर। इसमें क्या होगा, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया रियल फ्लो में भी, कि हम 2 सेक्टर्स को ही कंसीडर करेंगे। वन इज हाउस होल्ड सेक्टर एंड व्हाट इज प्रोड्यूसर सेक्टर। अब इसमें मनी का लेना देना होगा। तो क्या होगा कि जैसे हमें पता है कि प्रोड्यूसर सेक्टर के पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आ जाते हैं। ठीक है, उसके पास क्या कहते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आ जाते हैं। कहाँ से आते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर से आते हैं। पर अब हमने मनी फ्लो की बात करनी, तो समथिंग रिलेटेड टू मनी विल बी इन्वॉल्व। सो प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर्स को फैक्टर पेमेंट्स प्रोवाइड करेगा। फैक्टर पेमेंट्स मीन्स रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, पैसा प्रोवाइड करेगा, मनी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, हमने बिकॉज मनी फ्लो की बात करें तो पैसे की बात आएगी। तो प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर्स को क्या प्रोवाइड करेगा? फैक्टर पेमेंट्स प्रोवाइड करेगा। इन रिटर्न ऑब्वियसली हाउस होल्ड सेक्टर को भी कुछ ना कुछ अब प्रोड्यूसर सेक्टर को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा? पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर सेक्टर को प्रोवाइड करेगा। जो प्रोड्यूसर ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की है, ठीक है, वो कौन खरीदेगा? वो हाउस होल्ड सेक्टर खरीदेगा। और जब हाउस होल्ड सेक्टर उस गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेगा, तो उसको क्या देना पड़ेगा? प्रोड्यूसर सेक्टर को उसको पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी प्रोड्यूसर सेक्टर। ओके, so that's all for this video. Students, before just winding up this video, I would like to ask you that do you want me to discuss questions on the topic that I have discussed in this video? Do tell me in the comment section so that I can make changes accordingly in the next video. That's all for this video. Hope you have understood the concept, and don't forget to like, share and subscribe the channel.